بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحیم مالک یوم الدین۔ میرے پیارے بھائیوں اور میرے معزز سامعین بھائیوں، کائنات کے مالک نے انسان کو پیدا کیا تو اس کی آزمائش کے لیے مصائب اور مشکلات کا تذکرہ بھی فرمایا، لیکن ساتھ ہی وہ راستہ بھی بتا دیا جس پر چل کر بندہ ہر طوفان سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ آج ہم جس درود پاک کی حقیقت اور اس کے اسرار سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں اسے اہل معرفت درود مستغاث کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ درود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب تمام ظاہری اسباب ختم ہو جائیں اور انسان بے بسی کی انتہا پر ہو تو یہ وظیفہ اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کا سب سے تیز ترین ذریعہ بنتا ہے۔ درود مستغاث کی اصل حقیقت کیا ہے اور کیوں اسے اولیاء اللہ نے ناگہانی آفات کے خلاف ایک ڈھال قرار دیا ہے، اس کی گہرائی میں جانے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مستغاث کا لفظی مطلب فریاد کرنا یا مدد طلب کرنا ہے، اور جب یہ لفظ درود پاک کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں فریاد پیش کرتا ہوں۔ اہل سنت و جماعت کے اکابرین اور صوفیاء کرام نے اپنی زندگیوں کے نچوڑ میں اس درود کو وہ مقام دیا ہے جو کسی اور وظیفے کو حاصل نہیں، کیونکہ اس میں براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کا واسطہ دے کر اللہ سے التجائیں کی جاتی ہیں۔ قدیم قلمی نسخوں اور بزرگان دین کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ درود مستغاث کی تجلیات کا ظہور اس وقت ہوا جب ایک اللہ والے سخت آزمائش میں تھے اور غیب سے ان کے قلب پر یہ الفاظ القا ہوئے کہ اے بندی تو پریشان کیوں ہوتا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح عرض کر تو تیری بگڑی بن جائے گی۔ اس کے بعد سے یہ درود نسل در نسل سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہا اور آج یہ لاکھوں انسانوں کی ایمان کی تازگی کا باعث ہے۔ اس درود کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ انسان کے باطن میں ایک ایسا سکون پیدا کر دیتا ہے کہ کڑی سے کڑی دھوپ میں بھی اسے ٹھنڈی چھاؤں کا احساس ہونے لگتا ہے۔ کنز الایمان میں جہاں اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہے وہاں یہ واضح ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے۔ کنز الایمان میں جہاں اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہے وہاں یہ واضح ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے، اور جب پکار میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام شامل ہو جائے تو وہ پکار کبھی رد نہیں ہوتی۔ درود مستغاث کے پیچھے وہ روحانی طاقت کام کر رہی ہوتی ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض اوقات بڑی بڑی بلائیں صرف ایک دعا سے ٹل جاتی ہیں۔ درود مستغاث وہی دعا ہے جو بلاؤں کا رخ موڑ دیتی ہے۔ اس درود کے ایک ایک حرف میں وہ چاشنی ہے جو پڑھنے والے کی زبان پر شہد گھول دیتی ہے اور سننے والے کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شمع روشن کر دیتی ہے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ جب بھی اسلام پر کوئی کٹھن وقت آیا یا مسلمانوں کی کسی بستی پر وبا نے ڈیرے ڈالے تو اللہ والوں نے اسی درود کا سہارا لیا اور اللہ نے ان کی لاج رکھ لی۔ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے بلکہ یہ انوار و تجلیات کا وہ سمندر ہے جس کی موجیں گناہوں کی گندگی کو دھو ڈالتی ہیں اور انسان کو پاکیزہ بنا کر اس قابل کرتی ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو سکے۔ اس درود پاک کی تاثیر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ پڑھنے والے کے رزق میں برکت لاتا ہے اور اس کے گھر سے نحوست کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اگر ہم بہاری شریعت کے احکامات اور روحانی فضائل کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نام کے بعد سب سے زیادہ برکت والا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور جب ہم اس نام کے ساتھ اللہ سے فریاد کرتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ درود مستغاث کی یہ پہلی منزل ہے جہاں آپ کو یہ یقین کامل حاصل کرنا ہے کہ کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ اگر آپ کے پاس درود پاک کا ہتھیار موجود ہے، آپ کی زندگی میں آنے والی ہر ناگہانی آفت، چاہے وہ بیماری ہو، دشمن کا خوف ہو یا اچانک آنے والا کوئی بڑا نقصان ہو، اس درود کی برکت سے ایسے غائب ہو جائے گا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ بزرگان سلف فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد یا کسی خاص وقت میں اس درود کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ان جگہوں سے رزق اور کامیابی عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس درود کی ایک پوشیدہ حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ انسان کے خوابوں کو بھی معطر کر دیتا ہے اور اسے زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل بناتا ہے۔ درود مستغاث کے فضائل بیان کرنا تو سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے، لیکن اس کے پہلے نقطے میں ہم نے صرف اس کے تعارف اور اس کی روحانی بنیاد پر بات کی ہے تاکہ آپ کے دل میں اس کی عظمت بیٹھ جائے۔ یاد رکھیے کہ وظیفہ تبھی اثر کرتا ہے جب یقین پختہ ہو اور عقیدہ خالص بریلوی صوفیہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہو، کیونکہ محبت اور ادب ہی وہ دو چابیاں ہیں جن سے قبولیت کے تالے کھلتے ہیں۔
दुरूद मुस्तगास की पुकार जब इखलास के साथ निकलती है तो वो आसमानों के दरवाजे खोल देती है और फरिश्ते उस बंदे के लिए सलामती की दुआएं करने लगते हैं। यही वो ताकत है जिसने बड़े बड़े जाबिर बादशाहों के तख्त हिला दिए और परेशान हालों की कश्ती पार लगा दी। आने वाले हिस्सों में हम इसकी मजीद पुरस्रार वाकयात और इसे पढ़ने के वो तरीके बयान करेंगे जो अब तक आम नहीं हुए और जो आपकी जिंदगी में एक ऐसा इनकलाब लाएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये दुरूद दर हकीकत अल्लाह की तरफ से बंदाए मोमिन के लिए एक अनमोल तोहफा है जो उसे दुनिया और आखिरत की हर रुसवाई से बचा लेता है और उसे इस मुकाम पर ला खड़ा करता है जहां सिर्फ रब की रजा और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदी होती है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन भाइयों, दुरूद मुस्तगास की अजमत का दूसरा बाब उसके इस हिसारे हिफाजत के गिर्द घूमता है जो औलिया-ए-इल्लाह ने अपनी रूहानी बसीरत से नागहानी आफात के खिलाफ दरियाफ्त किया था। तारीख़ इंसानी शाहिद है कि जब कभी ज़मीन पर वबाएं फूटीं या आसमान से बलाएं नाजिल हुईं तो मादी असबाब हमेशा नाकाम साबित हुए, लेकिन रूहानियत के शहसवारों ने दुरीद पाक के इस इस्तगासे से वो काम लिया जिसने अक्ल इंसानी को दंग कर दिया। नागहानी आफात वो आजमाइशें होती हैं जो इंसान को संभलने का मौका भी नहीं देती। कभी अचानक बीमारी का हमला तो कभी मालो जान का वो नुकसान जो इंसान को जीते जी मार देता है। लेकिन औलिया-ए-इल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स दुरूद मुस्तगास के हिसार में आ जाता है वो गोया अल्लाह की अमान में आ जाता है। बहार शरीयत के फैज़ान और कंजुल ईमान की तफसीरी रोशनी में हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की पनाह मांगने का सबसे बेहतरीन तरीका उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थामना है। इस दुरूद की तासीर का आलम यह है कि जब कोई बंदा उसे खलूसी दिल से पढ़ता है तो उसके गिर्द अनवार व तजल्लियात का एक ऐसा दायरा बन जाता है जिसे कोई भी बुरी आफत या जादू टोना अबूर नहीं कर सकता। सूफिया किराम के नजदीक नागहानी आफत सिर्फ वो नहीं जो बज़ाहिर नजर आए, बल्कि ईमान पर पढ़ने वाला डाका भी सबसे बड़ी आफत है और दुरूद मुस्तगास पढ़ने वाले का ईमान शैतान के वार से हमेशा महफूज रहता है। पुराने वक्तों का जिक्र है कि जब किसी शहर में ताऊन या कोई मुहलिक मर्ज फैलका तो अल्लाह की वली अपनी मुरीदैन को इसी दुरूद की कसरत का हुक्म देते थे और देखती ही देखती वो बस्ती अल्लाह के हुक्म से सलामत रहती थी। ये कोई जादुई अमल नहीं बल्कि ये कलामी इलाही और हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुरक्कब है जो कायनात की जर्री जर्री में जिंदगी की लहर दौड़ा देता है। मेरे प्यारे भाइयों, औलिया अल्लाह का ये आजमूदा तरीका रहा है कि जब वो देखते कि मुसीबत हद से बढ़ गई है तो वो दुरूद मुस्तगास के ज़रिए अल्लाह के गज़ब को उसकी रहमत में बदलने की इल्तिजा करते थे, क्योंकि इस दुरूद के हर लफ्ज़ में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सिफ़ात बयान की गई हैं जिन्हें सुनकर अर्श पर रहमत की घटाएं छा जाती हैं। ये वो हिसार है जो इंसान को तन्हाई के खौफ से भी निकालता है और उसे ये एहसास दिलाता है कि वो अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं मौजूद हैं। इस दुरूद की बरकत से नागहानी हादसात जैसे कि अचानक मौत या बड़े हादसे टल जाते हैं, क्योंकि तकदीर मुबरम को सिर्फ दुआ और दुरूद ही बदल सकते हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें भी आफात से महफूज रहें तो अपने घरों में दुरूद मुस्तगास की सदा बुलंद करो, क्योंकि जिस घर में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा जाए वहां फरिश्ते पहरा देते हैं और जिन्नात व शयातीन वहां से भाग खड़े होते हैं। नागहानी आफात के इस दौर में जहां हर तरफ बेयकीनी का आलम है, ये दुरूद एक ऐसी मजबूत चट्टान है जिससे टकराकर हर लहर पाश पाश हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी ऐसे साफ बच निकलते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इस दुरूद का हिसार सिर्फ दुनियावी आफात तक महदूद नहीं है, बल्कि ये कब्र के अंधेरे और हशर की तपिश में भी बंदाए मोमिन के लिए ठंडी हवा का झोंका साबित होगा। औलियाउल्लाह ने इसे मुस्तगास यानी फरियाद इसलिए कहा है क्योंकि बंदा जब अपनी तमाम कोशिशों में हार जाता है तो वो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज पर आकर पुकारता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप ही मेरी फरियाद सुने और आपके वसीले से अल्लाह मेरी ये मुश्किल हल फरमाए। यही वो सच्ची तड़प है जो इस दुरूद को दीगर वज़ाइफ से मुमताज करती है और इसे एक फौरी असर दिखाने वाला वजीफा बनाती है। अगर हम आज की जिंदगी पर गौर करें तो हम हर लम्हा खतरात में घिरे हुए हैं, लेकिन जो जबान इस दुरूद से तर रहती है उस पर ना मौत का डर गालिब आता है और ना रिस्क की तंगी का खौफ,
क्योंकि वो जानता है कि जिसका हामी और नासिर अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, उसे कोई नागहानी आफत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस हिसारे हिफाजत की एक और खासियत ये है कि ये बंदे के बातिन को इतना मजबूत कर देता है कि वो पहाड़ जैसी मुसीबत को भी खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर लेता है और आखिरकार अल्लाह उसे सुरखरू फरमा देता है। दुरूद मुस्तगास के इस रूहानी हिसार को समझने के लिए जरूरी है कि हम अपने दिलों को मैल कुचैल से पाक करें और मुकम्मल तौर पर बरेलवी मसलक की उन उसूलों पर कारबंद हों जो हमें अदब व ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते हैं। क्योंकि बेअदबी के साथ पढ़ा गया कोई भी कलाम तासीर से खाली होता है और अदब के साथ पढ़ा गया एक एक हर्फ तकदीर के फैसले बदल देता है। यही वो पोशीदा राज है जो औलियाउल्लाह ने हमें सिखाया है कि जब आफत सर पर हो तो घबराने की बजाय दुरूद मुस्तगास की पनाह में आ जाओ कि यही नजात का रास्ता है और यही वो मजबूत किला है जिसके अंदर आ जाने वाला कभी नामुराद नहीं होता। अनवारे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बरखा जब बंदे पर बरसती है तो उसके दुखों की तपिश खत्म हो जाती है और उसे वो रूहानी सुकून मयस्सर आता है जो किसी और तरीके से मुमकिन ही नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, इस दुरूद को सिर्फ एक वजीफा ना समझें, बल्कि इसे अपनी जिंदगी की ढाल बना लें जो आपको हर मोड़ पर हर नागहानी आफत से बचाती रहेगी और आपको कामयाबी की उन मंजिलों तक पहुंचाएगी जहां सिर्फ सुकून ही सुकून है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामाईन भाइयों, दुरूद मुस्तगास की रूहानी अज़मत का तस्करा करते हुए जब हम तारीख़ के औराक पलटते हैं तो हमें सुल्तान महमूद गज़नवी जैसे अजीम हुक्मरान और सच्चे आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हैरान कुन वाक़या मिलता है जो रहती दुनिया तक के मुसलमानों के लिए ईमान ताज़ा कर देने वाली एक रोशन मिसाल है। सुल्तान महमूद गज़नवी वो शख्सियत थे जिनके नाम से कुफ्र के ईवान लर्जा बरांदाम हो जाते थे, लेकिन उनकी असल ताकत उनकी तलवार नहीं बल्कि उनका वो इश्क था जो वो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से रखते थे। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा सुल्तान महमूद गज़नवी एक ऐसी मुहिम पर निकले जहां हालात इंतहाई नासाजगार हो गए और दुश्मन की कसीर तादाद के सामने इस्लामी लश्कर बज़ाहिर बेबस नजर आने लगा। फाका कशी और सख्त मौसम ने मुजाहिदीन के कदम उखाड़ने की कोशिश की तो उस कठिन घड़ी में सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपनी पेशानी अल्लाह के हुजूर सजदे में रख दी और अपने दिल की अथाह गहराइयों से दुरूद मुस्तगास की इन्हीं कलिमात के वसीले से फरियाद की जो औलियाउल्लाह का फौरी और आजमूदा वजीफा कहलाते हैं। सुल्तान ने रो रो कर अर्ज की कि ए अल्लाह, मैं तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेकर तेरी बारगाह में इस्तिगासा पेश करता हूँ कि आज तेरे नाम लेवाओं की लाज रख ले। अभी सुल्तान की दुआ खत्म ना हुई थी कि गैब से ऐसी मदद पहुंची कि दुश्मन के पांव उखड़ गए और एक ऐसी नागहानी फतह नसीब हुई जिसका तसव्वुर भी महाल था। ये वाकया सिर्फ एक जंगी फतह की दास्तान नहीं है, बल्कि ये इस हकीकत की गवाही है कि जब कोई बादशाह हो या फकीर, अगर वो दुरूद मुस्तगास को अपनी पनाहगाह बना ले तो कायनात की कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। मेरे प्यारे भाइयों, कुंजुल ईमान की रूह हमें यही सिखाती है कि अल्लाह की मदद हमेशा उसके प्यारों के तुफैल हासिल होती है और सुल्तान महमूद गज़नवी का ये अमल ऐन उसी अकीदे की अक्कासी करता है जो अहले सुन्नत व जमात का खासा है। इस वाक़े का एक और ईमान अफरोज़ पहलू ये भी है कि सुल्तान महमूद गज़नवी अपनी ज़िंदगी के हर मुश्किल फ़ैसले में दुरूद मुस्तगास की बरकत से गैबी रहनुमाई हासिल किया करते थे। बड़े बड़े उलमा और सूफिया फरमाते हैं कि सुल्तान को जो फतूहात हासिल हुई उनके पीछे उनके वो आंसू थे जो वो दुरूद पाक पढ़ते हुए बहाया करते थे। दुरूद मुस्तगास की पोशीदा ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इसकी तिलावत से न सिर्फ ज़ाहिरी दुश्मन मगलूब होते हैं बल्कि बातिनी दुश्मन यानी नफ्स और शैतान भी इंसान का पीछा छोड़ देते हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी के इस सच्चे वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि नागहानी आफत चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर हम दुरूद मुस्तगास को अपना ओढ़ना बिछौना बना लें तो अल्लाह ताला गैब से ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है कि अक्लें दंग रह जाती हैं। बहार शरीयत के मुताबिक दुरूद सलाम की कसरत गुनाहों का कफ़ारा और दर्जात की बुलंदी का सबब है और जब इसमें इस्तगासे का रंग शामिल हो जाए तो ये अल्लाह की रहमत को तेज़ी से अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। आज के दौर में जब हम मुख्तलिफ परेशानियों और दुश्मनों के नरगी में हैं तो हमें सुल्तान महमूद गज़नवी के इस अमल को अपनाने की ज़रूरत है। ये वो आजमूदा वजीफ़ा है जिसने सदियों पहले एक अजीम बादशाह की लाज रखी थी और आज भी ये इतना ही पुरअसर और फौरी है जितना उस वक्त था। सुल्तान की ज़िंदगी का ये वाक़या हमें बताता है कि हकीकी कामयाबी मादी वसाइल में नहीं बल्कि दुरूद पाक की उस रूहानी ताकत में है जो हर ताले की चाबी है। जब हम इस वाक़े पर गौर करते हैं तो हमारा ईमान और ज़्यादा पुख्ता हो जाता है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम वो ढाल है जो हर तीर को रोक लेती है।
सुल्तान महमूद गजनवी का ये किस्सा हर मुसलमान के लिए मशाली राह है कि जब दुनिया के दरवाजे बंद नजर आएं तो दुरूद मुस्तगास की सूरत में आसमानी दरवाजा खटखटाओ। मेरे प्यारे भाइयों, जहां से कभी मायूसी नहीं मिलती, इस वाक़े ने यह साबित कर दिया कि दुरूद मुस्तगास सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ये एक ऐसी गैबी तलवार है जो नजर नहीं आती मगर अपना काम कर जाती है। और आज भी जो कोई सच्चे दिल से और बरेलवी सूफिया के बताए हुए अदब के साथ इस दुरूद को अपनी ज़बान पर जारी करता है तो सुल्तान महमूद गजनवी की तरह उसकी भी गैब से मदद की जाती है और उसके लिए वो रास्ते खोल दिए जाते हैं जिनका उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होता। यही वो सच्चा ईमान है जो एक मुसलमान को हर खौफ से आज़ाद कर देता है और उसे इस मुकाम पर पहुंचा देता है जहां सिर्फ कामयाबी और कामरानी उसका मुकद्दर बन जाती है। इस वाक़े की तासीर आज भी इतनी ही जिंदा है जितनी सदियों पहले थी और ये हमें दावत देती है कि हम भी अपनी जिंदगियों में दुरूद मुस्तगास की बरकतों को शामिल करें ताकि हम भी हर नागहानी आफत से महफूज रह सकें और अल्लाह की इनाम याफ्ता बंदों में शामिल हो जाएं जिनका जिक्र तारीख हमेशा सुनहरी हरूफ में करती रहेगी। दुरूद मुस्तगास की रूहानी वसतों का तस्करा करते हुए अब हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां हम इन अजीम कुतुब और अनवार इलाहिया की रोशनी में इस वजीफे की हकीकत को समझेंगे जिनका जिक्र हमारी ईमान की बुनियाद है। कशफुल महजूब जैसी अजीम किताब जिसके मुसन्निफ हजरत दाता गंजबख्श अली हजबेरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, वो हमें सिखाती हैं कि अल्लाह के प्यारों का जिक्र और उनके वसीले से मांगी गई दुआ कभी रायगा नहीं जाती। और जब हम बहारी शरीयत की रूहानी मुशाहिदात पर नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि औलियाए अल्लाह ने दुरूद मुस्तगास को महज एक वजीफा नहीं बल्कि एक ऐसी रूहानी खिड़की करार दिया है जहां से बंदा बराह रास्त अनवारी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशाहिदा करता है। इन बुजुर्गों ने अपनी जिंदगियों में ऐसे ऐसे मुशाहिदात किए कि जब कभी कोई मुरीद किसी ऐसी उलझन में गिरफ्तार हुआ जिसका बज़ाहिर कोई हल ना था तो उसे दुरूद मुस्तगास की तलकीन की गई और फिर चश्मे फलक में देखा कि इस दुरूद की बरकत से वो बंदा ना सिर्फ उस मुश्किल से निकला बल्कि उसे वो बातनी सुकून मुयस्सर आया जो बादशाहों को भी नसीब नहीं होता। औलियाए अल्लाह फरमाते हैं कि दुरूद मुस्तगास पढ़ने वाले के दिल पर अल्लाह ताला अपनी मार्फत के वो दरवाजे खोल देता है जहां से उसे कायनात के असरार नजर आने लगते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, औलियाए अल्लाह फरमाते हैं कि दरूद मुस्तगास पढ़ने वाले के दिल पर अल्लाह ताला अपनी मार्फत के वो दरवाजे खोल देता है जहां से उसे कायनात के असरार नजर आने लगते हैं। कशफुल महजूब में बयान करदा उसूलों के मुताबिक जब इंसान अपने नफ्स को फना करके दरूद पाक की उस खुशबू में बस जाता है तो उसके लिए हर नागहानी आफत एक रहमत बनकर नाजिल होती है क्योंकि वो जानता है कि उसका ताल्लुक उस ज़ाते अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ चुका है जो तमाम जहानों के लिए रहमत है। बहार शरीयत के मुसन्निफ ने जहां शरई अहकामात की वजाहत फरमाई वहां रूहानियत के उन पहलुओं की तरफ भी इशारा किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही तमाम इबादात की रूह है और दरूद मुस्तगास इसी मोहब्बत का एक वालिहाना इजहार है। इन बुजुर्गों का ये मुशाहिदा रहा है कि इस दरूद की तिलावत से इंसानी कल्ब की सख्ती खत्म हो जाती है और वहां अल्लाह की याद का नूर चमकने लगता है। आपने अक्सर सुना होगा कि अल्लाह के वलियों की दुआओं में इतनी ताकत क्यों होती है। इसकी वजह यह है कि उनकी ज़बानें हर वक्त दरूद पाक से तर रहती हैं और दरूद मुस्तगास उनका वो खास हथियार है जिसे वो बड़ी से बड़ी रूहानी जंग जीतने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कशफुल महजूब की तालीमात हमें ये बताती हैं कि जब बंदा दुनिया से कटकर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से फरियाद करता है तो अर्श इलाही के फरिश्ते उसकी पुकार पर लब्बैक कहते हैं। ये वो रूहानी मुशाहिदात हैं जो सिर्फ उन लोगों को नसीब होते हैं जिनके अकायद अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक पुख्ता हों और जिनके दिलों में कंजुल ईमान की तफसीर जैसी सच्ची तड़प मौजूद हो। औलियाए अल्लाह ने इस दरूद को नागहानी आफात के हल के लिए इसलिए मखसूस किया क्योंकि उसमें एक ऐसी फौरी तासीर रखी गई है जो पढ़ने वाले के इर्द गिर्द एक नूरानी गुलाफ बना देती है। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गाने दीन के मुशाहिदात बताते हैं कि जो शख्स इस दुरूद को बाकायदगी से पढ़ता है उसे ख्वाबों में भी ऐसी रहनुमाई मिलती है जो उसे आने वाले खतरात से पहले ही आगाह कर देती है। ये वो बातिनी बसीरत है जो सिर्फ दुरूद मुस्तगास के फैज़ान से हासिल होती है। बहार शरीयत में जिस तरह अदब व ताज़ीम के तरीके बताए गए हैं उन पर अमल करते हुए जब कोई तालिब सादिक इस वजीफे को पढ़ता है तो उसके तमाम बंद रास्ते खुल जाते हैं और वो एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो जाता है जहां सिर्फ सुकून ही सुकून है। अनवारे औलिया की ये बारिश जब किसी बंजर दिल पर बरसती है तो वो दिल भी अल्लाह की याद से सरसब्ज़ो शादाब हो जाता है। दुरूद मुस्तगास का ये चौथा नुक्ता हमें इस बात पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगियों का जायजा लें
कि क्या हमने भी इस रूहानी ताकत को अपनाया है जिसे औलिया अल्लाह ने हर बीमारी और हर परेशानी का इलाज करार दिया है। याद रखिए कि किताबों में लिखी बातें तभी असर दिखाती हैं जब उन्हें दिल की तख्ती पर लिखा जाए, और दुरूद मुस्तगास वो तहरीर है जो कभी नहीं मिटती, क्योंकि ये बराह रास्त बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश की जाती है। औलिया अल्लाह के ये मुशाहिदात कोई किस्से कहानियां नहीं, बल्कि वो सच्चाइयां हैं जिन्हें उन्होंने अपनी रातों की इबादतों और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं से साबित किया है। इसलिए मेरे भाइयों, जब कभी आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो इन बुजुर्गों के बताए हुए इस तरीके पर अमल करें और दुरूद मुस्तगास की पनाह में आ जाएं कि यही वो रास्ता है जो सीधा अल्लाह की रज़ा और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी की तरफ जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन भाइयों, दुरूद मुस्तगास की अनवार व तजल्लियात का सफ़र करते हुए अब हम इस 5वें मकाम पर पहुंच चुके हैं, जहां उसकी वो पोशीदा ताकत ज़ाहिर होती है जो सिर्फ मखसूस रूहानी आदाब और इखलास नीयत की मरहून मिन्नत है। औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि हर ताली की एक चाबी होती है, और दुरूद मुस्तगास की चाबी वो ख़ास तरीक़ा और शराइत हैं जिनके बग़ैर इस रूहानी ख़जाने तक रसाई मुमकिन नहीं है। बुजुर्गाने दीन ने हमें सिखाया है कि जब तुम दुरूद मुस्तगास को किसी कठिन मुसीबत या नागहानी आफत के हल के लिए पढ़ना चाहो, तो सबसे पहले अपने बातिन को गुनाहों की गंदगी से पाक करो, क्योंकि एक गंदी ज़बान से निकला हुआ पाक कलाम वो तासीर नहीं रखता जो एक ताइब दिल से निकलती है। बहार शरीयत के अहकामात हमें बताते हैं कि किसी भी वजीफे की कबूलियत के लिए सिद्क़े मकाल यानी सच बोलना और हलाल रिज़्क़ बुनियादी शराइत हैं। और जब दुरूद मुस्तगास की बात आती है तो अदब व ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका पहला और आखिरी जीना बन जाता है। इस वजीफे को पढ़ने का एक मखसूस रूहानी तरीका ये है कि बंदा बावजू होकर क़िबला रू बैठ जाए और अपने दिल में ये तसव्वुर कायम करे कि वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों के सामने खड़ा अपनी फरियाद पेश कर रहा है। औलिया अल्लाह फरमाती हैं कि जिसने इस तसव्वुर के साथ दुरूद मुस्तगास का एक हर्फ भी पढ़ लिया तो अर्श के फरिश्ते उसकी पुकार पर गवाह बन जाते हैं। इस वजीफे की एक पोशीदा शर्त ये भी है कि उसे पढ़ते वक्त दिल में किसी के लिए कीना या बोझ ना हो, क्योंकि दुरूद पाक तो रहमत है और रहमत वहाँ नहीं ठहरती जहाँ नफरत की डेरी हो। बुजुर्गानी सलफ ने दुरूद मुस्तगास के लिए वक्त की तखसीस भी बयान फरमाई है, खुसूसन रात का आखिरी पहर या जुमाउल मुबारक की घड़ियाँ जब रहमत इलाही जोश में होती है। उस वक्त इस दुरूद की तासीर 1000 गुना बढ़ जाती है। लेकिन याद रखिए कि ये कोई जादुई मंत्र नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की बारगाह में एक आजिज़ाना इस्तिगासा है। मेरे प्यारे भाइयों, पढ़ने वाले के लहजे में वही आजिज़ी होनी चाहिए जो एक साइल के लहजे में होती है, जो अपने मालिक के दरवाजे पर दस्तक दे रहा होता है। कुंजुल ईमान की रोशनी में हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला बंदे की शहरक से भी ज्यादा करीब है, और जब बंदा इखलास नीयत के साथ दुरूद मुस्तगास की पुकार बुलंद करता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम हिजाबात उठा देता है। इस वजीफे की पोशीदा ताकत सिर्फ उन लोगों पर जाहिर होती है जो इसे दुनिया दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रब की रज़ा और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदी के लिए पढ़ते हैं। सूफियाए किराम फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये वजीफा तीर बहदफ साबित हो तो पहले अपने अखलाक को संवारो और नमाज़े पंजगाना की पाबंदी करो, क्योंकि जो बंदा फ़राइज़ को छोड़कर नवाफिल में पनाह ढूंढता है उसे वो बरकत नहीं मिलती जो एक इताअत गुजार बंदे का मुकद्दर होती है। दुरूद मुस्तगास की शराइत में से एक अहम शर्त ये भी है कि इसे पढ़ने वाला अहले सुन्नत व जमात के सच्चे अकीदे पर कायम हो, क्योंकि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो बुनियाद है जिस पर इस वजीफे की इमारत खड़ी है। औलिया अल्लाह ने यह भी नसीहत फरमाई है कि जब तुम इस दुरूद को पढ़ो तो अपनी हाजत को अल्लाह के सपुर्द कर दो और नतीजे के लिए बेसब्री न दिखाओ, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि तुम्हारे हक में क्या बेहतर है और वो किस वक्त तुम्हारी झोली को खुशियों से भरेगा। दुरूद मुस्तगास की ये रूहानी मश्क जब एक मखसूस तादाद और तसलसल के साथ की जाती है तो पढ़ने वाले के इर्द गिर्द एक ऐसी रूहानी तवानाई पैदा हो जाती है जो उसे हर किस्म की जादू, नजर बद और नागहानी आफात से महफूज रखती है। यही वो आदाब हैं जो एक आम इंसान को खास बना देते हैं और एक परेशान हाल को मुतमईन बना देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, जब भी इस वजीफे को शुरू करें तो इन शराइत को अपने सामने रखें कि आपकी नीयत खालिस हो, आपका लिबास पाक हो और आपका दिल इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज हो। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन भाइयों, दुरूद मुस्तगास के इस नूरानी सफ़र के आखिरी पड़ाव पर जब हम पहुँचते हैं तो हमें इस हकीकत का इदराक होता है कि ये वजीफ़ा महज दुनियावी मुश्किलात का हल ही नहीं
بلکہ یہ ایمان کی تازگی اور روح کی بالیدگی کا وہ عظیم الشان ذریعہ ہے جو بندے کو مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر امید کی روشن شاہراہ پر لا کھڑا کرتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ زندگی کی تپتی دھوپ میں درود مستغاث وہ ٹھنڈا سایہ ہے جس کے نیچے آ کر ہر تھکا ہارا مسافر سکون پاتا ہے۔ ہم نے اس تذکرے میں دیکھا کہ کس طرح اولیاء اللہ نے اس درود کو ناگہانی آفات کے خلاف ایک ناقابل تسخیر ڈھال قرار دیا، اور کس طرح سلطان محمود غزنوی جیسے عظیم سپاہ سالار نے اس کے وسیلے سے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ یہ تمام واقعات اور مشاہدات ہمیں اسی ایک مرکز کی طرف بلاتے ہیں کہ جب اللہ کا بندہ اپنے تمام غرور اور اپنی تمام تدبیروں کو ترک کر کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر استغاثہ پیش کرتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی مدد کے لیے پکار اٹھتا ہے۔ کنز الایمان کی تعلیمات اور بہاری شریعت کے روحانی اسباق کا نچوڑ یہی ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی وہ اصل سرمایہ ہے جو حشر کے میدان میں بھی کام آئے گا اور دنیا کی کڑی آزمائشوں میں بھی سرخرو کرے گا۔ درود مستغاث کی برکت سے انسان کا باطن اتنا منور ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں رب کی رضا شامل نظر آتی ہے۔ یہ وظیفہ ہمیں سکھاتا ہے کہ پریشانی چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ میرے معزز سامعین، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا سب سے قریبی راستہ درود پاک کی کثرت ہے۔ ایمان کی تازگی کا راز اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ ہم ہر لمحہ اپنی زبانوں کو درود و سلام سے تر رکھیں، اور خاص طور پر درود مستغاث جیسے طاقتور وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تاکہ کوئی بھی ناگہانی آفت ہمیں ہرا نہ سکے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اس درود کی خوشبو سے اپنے سینے کو بسا لیتا ہے اسے موت کی تلخی بھی محسوس نہیں ہوتی، اور قبر کا اندھیرا بھی اس کے لیے جنت کے باغوں کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں مادیت کا غلبہ ہے اور ہر انسان کسی نہ کسی خوف میں مبتلا ہے، وہاں درود مستغاث وہ مینار نور ہے جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو منزل کا پتہ دیتا ہے۔ یہ وہ پکار ہے جو براہ راست گنبد خضرا کے سائے میں سنی جاتی ہے، اور جہاں سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ میرے بھائیوں، اس پورے تذکرے کا مقصد صرف معلومات فراہم کرنا نہیں تھا، بلکہ آپ کے دلوں میں اس یقین کو پیدا کرنا تھا کہ ہمارے پاس ایک ایسی روحانی طاقت موجود ہے جس کے سامنے دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی مشکل ٹھہر نہیں سکتی۔ اگر ہم سچے دل سے بریلوی صوفیہ کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلتے ہوئے درود پاک کا دامن تھام لیں تو ہماری تقدیر بدل سکتی ہے۔ درود مستغاث کا یہ پیغام عام کریں کہ مایوسی کفر ہے، اور درود پاک وہ شفا ہے جو ہر لا علاج مرض کو ختم کر دیتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس درود پاک کی برکات سے مالا مال فرمائے اور ہماری زندگیوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گہوارہ بنا دے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میرے معزز سامعین بھائیوں، اب وقت ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے حضور وہ التجا پیش کریں جو عرش الہی کو ہلا دینے والی ہے، کیونکہ جب انسان دنیا کے تمام سہاروں سے مایوس ہو کر اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے تنہا نہیں چھوڑتی۔ آئیے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اختتامی دعا۔ یا الہ العالمین، یا غیاث المستغیثین، اے بے سہاروں کے سہارے اور اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے رب، ہم تیرے عاجز، مسکین اور خطاکار بندے تیرے پیارے حبیب شفیع روز جزا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی وسیلہ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، اس درود مستغاث کی برکت سے جس کے ایک ایک لفظ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت چھپی ہے، ہماری تمام پریشانیوں کو راحتوں میں بدل دی۔ اے مولا، ہم ناگہانی آفات، اچانک آنے والی مصیبتوں، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ ہمیں حاسدین کے حسد، شریر لوگوں کے شر اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں برکت نازل فرما، ہماری نسلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن رکھ، اور ہمیں کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں وسعت پیدا فرما،